अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu narrates in a famous hadith from the Prophet sallallahu alaihi wasallam that if authority is entrusted to those unfit for it, then you must await the hour. Let me repeat the hadith that Abu Hurairah says that the Prophet said, if authority is entrusted to those unfit for it, then you must await the hour. Right? Now, there are two problems that most of us have when we look at ahadith in general and ahadith of this sort in particular. One, when we look at ahadith of this sort in particular, because the hadith is saying कि जब जिम्मेदारी जो है अथॉरिटी जो है उन लोगों को मिल जाती है जो उसके अहल नहीं है, राइट, जो उसको डिजर्व नहीं करते, तो फिर तुम क़यामत का इंतज़ार करो, यानी इट इज़ द एंड ऑफ टाइम्स. You hear of this hadith and you immediately start thinking about the fact that, yeah, we are at the end of the time. You can think about the government in this country, the bureaucracy, the establishment, the ulama, the religious clergy, whatever you want to think. And perhaps the vast majority of us will think of everybody when we think of this hadith, and we will not think of our own selves. And that is the biggest mistake that, I want to begin with, and that goes for myself as well. Because every single one of us is authority. And I'll give you another hadith of the Prophet ﷺ on this, where he said famously, Kullukum ra'in. Every one of you is a leader, is a shepherd, right? Because the shepherd is the leader, right? وَكُلُّكُم مَسْئُولُونَ. And every one of you is going to be asked about their flock, about the authority that was given to them, about the people that were responsible for, about the duties that were designated to them. And then apply the hadith that if that authority is entrusted to people who are unfit for it, then me and you are reason of the fact that Qiyamah aa rahi. We are the reason that there is fitan that exists in this world. So that's the first notion. And that actually takes me to what I want to say particularly as well. कि understand the fact, brothers and sisters, that हम जब दीन को पढ़ते हैं ना, बहुत सारी दफ़ा हम दीन को पर्सनलाइज करने पे फेल कर जाते हैं. ठीक है, हम इसेंशियली हर चीज़ थर्ड पर्सन में पढ़ते हैं. हम हर चीज़ को इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे होते हैं कि शायद किसी और की बात हो रही है, किसी और की गलती है, जबकि एक्चुअली, and that's human nature essentially. I'll give you a very small example. Most of you who've come here, you come in as guests, right? You come in as guests कि हम बयान सुनने जा रहे हैं. You don't have to worry about anything. People who have to worry about things is myself particularly, कि कुछ तैयार करना है, कोई बात करनी है, कुछ नहीं करना. That's a responsibility I feel. This Kamran sitting here, Allah इसको जज़ाए खैर दे, बेचारा 1 साल पहले से नसिया में फंस गया था. He's heading operations over here, इसको भाग दौड़ करनी है. वो जुहैब बेचारा कैमरे ले लेके हमारे पीछे फिरता रहता है. ठीक है, हमारी डिज़ाइन टीम, मीडिया टीम, हेड ऑफ मीडिया सब बैठे हुए. This is responsibility. When you think that you are responsible for something, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी अप्रोच, आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आपकी डेडिकेशन चेंज हो जाती है. मेरा और आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि वी डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द दीन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. Most of us are actually guests and auditors of Islam. Yeah, let this sink in. Most of us actually are guests and auditors of Islam. आप आज भी एक्चुअली कोई जिम्मेदारी लेने नहीं आए. आप अपने आबाओ अजदाद और अपने इवन रब पे उनके बापों पे एहसान कर रहे हैं कि आप इधर तशरीफ़ ले आए. आई एम सॉरी, दिस इज़ हर्श, बट दिस इज़ द बेयर मिनिमम ट्रूथ दैट आई कैन गिव टू यू. कि आपने किसी पे एहसान किया है कि आप आ गए हैं, आप बयान सुने, बिकॉज द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट इवन केयर अबाउट दैट. यू आर द नाइसर ऑफ द लॉर्ड. मी एंड यू एक्चुअली कुछ तो अल्लाह ने तौफीक दी. बट the question to be asked is that for how long are we going to keep auditing, and for how long are we going to be in guest mode? When is it that we start approaching Islam from the perspective of responsibility? From the perspective of the fact that everything that is being said first is being said about me. Every ayat came down about me.
Everything that the Prophet ﷺ left was about me. Because the moment you essentially start realizing that wallahi, fiqhi differences, Hanbali and Shafi'i and Salafi will not matter. Deobandi and Barelvi will not matter to you. Right? Rafa Yadain or no Rafa Yadain will not matter to you, because you will start looking at religion in a very different context. Sahil Adim or Engineer Ali Mirza or Mufti Tariq Masood will not even matter to you. Yeah. But when you are a guest and when you are auditing, yeah, all of this fun is amazing. Because then you have to do nothing. You just have to sit outside and criticize. You have to enjoy the circus that goes around, वो YouTube पे हो या हमारे मदारिस में हो या हमारी society में at large. But you know, why is it that we have to take responsibility? I mean, there are so many answers to it, but first, because Allah said so. He gave us that responsibility. Yeah, He gave us that responsibility. And I've said this time and again, कि ये किसी के बाप का दीन नहीं है, ये हमारा दीन है, and हमसे सवाल किया जाएगा, और हमें इसको recognize करना है, right? अगर आज मिंबर पर लोग गलत बैठे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है. अगर आज पाकिस्तान में फ़िरकावारियत है, सेक्टेरियनिज्म है, हमारी ज़िम्मेदारी है. अगर आज हमारे यहाँ जो है ना मजहबी टॉलरेंस एग्जिस्ट नहीं करता, हमारी ज़िम्मेदारी है. अगर हमारी यूथ एथियस्ट हो रही है, हमारी ज़िम्मेदारी है, किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है. वो किसी और पे बाद में जाएंगे, पहले हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर लेते हैं. अगर हमारे पास आज अच्छे इदारे नहीं हैं, अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है. Like that's what gives you the ability to actually start thinking and working. But the question is, are we even willing to, think about it in that perspective? And that's, one thing that you have to decide at some point in your life. आप आज भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है. And जिम्मेदारी के साथ ना एक चीज़ है जिसको फिर हम conviction कहते हैं. And conviction, actually, हमारे दीन में conviction is essentially ikhlas. Famous hadith of the Prophet again. I've taught it to students of ours over here in the course that we run by Fiqh of Dawah. It's a longer hadith. I'll give you the summary of it. This Bedouin man walks up to the Prophet, accepts Islam. Now imagine, except जिसने अभी इस्लाम कबूल किया है, उसका क्या knowledge है, उसको क्या ही उसने देखा है, right? And yet, he enters in a time of jihad, and he enters in a time जहाँ माल गनीमत तकसीम हो रहा है. And when the war booty comes in, and this was like a big thing in the Sahaba, right? तो उसको उसका share मिलता है. And he says to the Prophet that, Ya Muhammad, and which is how the Bedouins are, what is this? Ye kya hai? And the Prophet says, this is your share. He says, I didn't come here for this. He said, what did you come for? Right? He says, I came here so that I would fight in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Let me rephrase. He is saying, I came here so that I would take responsibility of this thing. So that I would do my part. And in the process, I hope that an arrow would come and hit me here. He points, right? An arrow would come and hit me here, and I would die in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Guess what? A few hours later, the body of the man is brought to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and an arrow has been hit him here. Right? And Allah ke Nabi farmate hain कि because he was sincere to what he wanted, look at how Allah subhanahu wa ta'ala gave this to him. Me and you actually are only lacking that. I am talking to actually a group of people who are so intelligent, wise, have all the resources, are privileged, have enough circles of influence, circles of concern, have done tremendously well in the dunya, are well educated. But the issue is again responsibility, right? It is responsibility. And I mean, I don't like doing this. Actually, मैं तो सोच भी नहीं रहा होता, frankly. But yeah, we are in 2025. And this is the first talk of 2025. So we could have done New Year resolutions, right? And ये बयान भी हो सकता था. मैं तो खैर बयान के टॉपिक देने के चक्कर से ही बाहर निकल गया हूँ. जिसने आना है आए, नहीं आना ना आए, ठीक है. We'll decide what has to be done. इस पे इख्तलाफ है हमारा मीडिया टीम के साथ. But so on the notion of 2025, what was the celebration and fireworks all about? जहाँ दुनिया में या हमारे मुल्क में या हमारी गलियों में और शहरों में, मैं फतवा नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूँ. और मैं ये भी नहीं पूछूंगा आप गए थे या नहीं गए थे. मुझे नहीं पता इस साल बहरिया टाउन आईफिल टावर में कुछ हुआ था या नहीं हुआ था. आई डोंट नो. आई नो हिस्टोरिकली कुछ होता रहा है, ठीक है, राइट. बट व्हाट वाज ऑल द एक्साइटमेंट अबाउट? किस बात की खुशी थी कि एक साल हमने जेनोसाइड को विटनेस किया है? इस बात की खुशी थी.
या 1 साल हमने इस मुल्क में जो है ना पॉलिटिकल इकोनॉमिक डायरी नहीं देखी है। इस बात की खुशी थी कि कितने लोग मरे हैं इस मुल्क में। इस बात की खुशी थी कि वो कुत्तों की तरह जो है ना हमारी औरतों को रेप कर रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। इस बात की खुशी थी कि हमने वेस्ट की और मीडिया की हिपोक्रेसी देखी है, उनका निफाक देखा है। इस बात की खुशी थी कि इसेंशियली लेबनान में भी अब ये शुरू हो गया है। किस चीज़ की खुशी थी हमें? And you know, it actually is exactly depictive of the fact कि how well have we been drugged. And it is not just you guys. It actually is the fact. Just imagine in a time where there is genocide happening, right, and it continues to happen, right, they have managed to get the Muslims nations to compete with the fact कि कौन ज़्यादा बड़े fireworks करेगा. Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. And you know why it works? Because me and you are the consumers of it. We let it happen. We consume all of this stuff. We consume all of this stuff. Because we don't take responsibility of what is happening. तो दो ends हैं स्पेक्ट्रम के जो मैं आपके सामने in the next 45 minutes that I have रखूँगा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैराडाइम में प्रैग्मेटिकली एक चीज़ सोचें कि आप अपनी ज़िंदगी को किस लिए गुजार रहे हैं, राइट। एंड जो नौजवान बैठे हुए हैं पर्टिकुलरली, कुछ ज़्यादा छोटे हैं बट कुछ माशाल्लाह टीनेजर्स, यंगस्टर्स, यूथ, राइट, एवरीबडी इज़ यूथ एक्चुअली इफ़ यू आस्क मी। You know why is everybody youth, by the way? Because your prophet, when he was fighting at Badr, he was 55. The prophet is 55 when he is fighting at Badr. He is 57 when he's fighting at Trench, probably, 4, 5, 58. So, if he is fighting as a general, right, leading the army, me and you cannot say we're old, we're done for, abhi agli nasl karegi. Ye bhi ek kamal hai idhar. Everybody keeps putting it on the next nasl. And our parents have done a stunningly miserable job actually in this. You know, I come across so many fathers जो अपने बच्चों के नेक होने का इंतज़ार कर रहे हैं. Yeah, they want their kids to be नेक, खुद बस कह रहे हैं कि हमारा तो कोई सीन नहीं है वैसे भी. This nifaq is ajeeb. Anyways, so the first thing is this, that so many people essentially want relaxation, peace, you know, happiness in their life. And essentially they will sort of, you know, try and get to anything that gives them happiness. And you have to understand कि दुनिया में जो इंसान चीज़ें परसू करता है ना, ये जो है ना enjoyment, fun, relaxation, this is the lowest of pursuits. This is the lowest of pursuits in one sense. इसमें कोई, now I'm not anti-happiness, I'm just saying कि अगर आप खुश रहने के लिए ज़िंदा रह रहे हैं तो ये कोई मकसद नहीं है आपकी ज़िंदगी का. And every campaign that your marketing companies and your, you know, consumer brands sell to you is all about that. What is this khale, pile, jile, Coca-Cola, right? Well, we can have Khilafat Cola in that place as well, no issue. Yeah, you know, khale, pile, jile, Khilafat Cola, Makkah Cola, Gourmet Cola, कौन सी थी और भी कोई थी. तो कुल हमारा रिस्पॉन्स और सोच इतनी है ना कि हमने कोका कोला की जगह खिलाफत कोला क्रिएट कर दी है. इससे इस्लाम सेव हो गया माशाल्लाह. It just shows again the state of our mind. I'm sorry for being cynical, guys, sorry. But you know, the whole notion that life is all about fun is just miserable and pathetic. It is far away from the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It is far away from the sunnah of the Sahaba. It is far away from the sunnah of the Salaf even. So you know, you bring me one man in the history of this ummah, a man who, you know, you can say कि हाँ ये he was an epitome of Islam, right? किसी मकतबा फ़िक्र से, who lived for joy, fun, ecstasy, excitement, pleasure, happiness, मैं कहूँगा हाँ ठीक है जवाब बनता है. Bring me one man who was able to do something in any sense of the word. I'll tell you, in fact, even in the dunya, right, you will not find this. You know, the people who are selling you this khale, pile, jile, मैं coke campaign नहीं कर रहा इस वक्त, anti coke campaign, I'm just using that as an example. The people behind the success of coke are not doing this. They're working hard like animals probably. They're working hard at anything.
उनकी ज़िंदगी में इतनी एफर्ट है कि आप सोच ही नहीं सकते, फॉर वट एवर दे बिलीव इज इम्पोर्टेंट, बट देव गॉटन मोस्ट ऑफ अस ड्यूप्ड इनटू थिंकिंग कि कुल ज़िंदगी का मकसद जो है ना ये है, और वो अलग अलग तरीके से ना मैनिफेस्ट होता है। नौजवानों में बस वो खाना पीना है, हंसी मजाक है, किसी को जो है ना हरास करना, बुली करना, किसी की लेना जिसको आप कहते हैं, हैंग अराउंड करना, गालियाँ देना, कूल बनना, ये सारी चीज़ें ये हुआ। किस लिए कर रहे हो ये सारा कुछ? अभी बैठ के सोचो कि आपकी ज़िंदगी में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप सिर्फ इसलिए करते हो। दिस इज़ अ ड्रग एक्चुअली, राइट? एंड जब हम ये चीज़ें अचीव कर लेते हैं तो फिर एक अलग बात है। मैं अभी कुछ दिन पहले अपने एक्सप्लोर वाले स्टूडेंट से हम यही बात कर रहे थे, बट इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, कि पीपल हु गेट अ सर्टेन लेवल ऑफ joy and happiness in their life move to a different thing, which is the whole idea that they want to be accepted, right? They essentially then want that the entire society validates them, and that's what most of us are doing. Now understand this, कि हम सब की ये problem है. Don't think this is somebody else. I want acceptability, right? But the problem is there is jaiz acceptability, there is najaiz acceptability. Let me explain that. Also the problem is there is acceptability for a good cause and there is acceptability in a very narcissistic sense. बहुत फर्क है इन दोनों चीज़ों में. So accept. So people who are slaves to this notion of being acceptable, you know what they're doing? They will follow whatever society follows. वो हर वो चीज़ करेंगे जो मुआशरा करता है, और उसी के बारे में कुरान एक्चुअली कह रहा है, अफराइत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, कि क्या तुम देखते नहीं हो उस शख्स को जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया। और वो ख्वाहिश है क्या एक्चुअली? वो ख्वाहिश ये है कि उसके दिल में ये है कि मैं वो करूं जिसको लोग सराहेंगे, तो जो लोग कहेंगे वो करता चला जाएगा। अगर मार्केट में यूथ में ड्रग्स कॉमन है तो वो ड्रग्स इस्तेमाल करेंगे। टू दी एक्सटेंट आई स्वेयर, एंड सम ऑफ दीस थिंग्स आर नॉट हराम, आप बोलना भी ऐसे शुरू कर देते हैं जैसे लोग बोलते हैं। या the slang that you use, the way you carry yourself, the way you talk, the way you dress, the way you smirk, everything like that. By the way, do you realize this is what the Quran was saying? قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي। ये जो इत्तिबा है ना, जो हम दुनिया में फैशन ट्रेंड और इन चीज़ों के पीछे कर रहे हैं, ये इत्तिबा की एबिलिटी हमें क्यों दी गई थी? So that we could follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the beloved prophet that we recognize. And yet what are we doing? We're following the people, right? So you'll do any and everything. And I'll give you दो तीन इशारात दूंगा मैं आपको. And ask your heart this: if you will change things about yourself, right, to get accepted by the people around you, this is a red flag. Just for their acceptance. If you will change things about yourself because your boss wanted to, this is a red flag. If you will change things about yourself because an organization or an institute's culture wanted you to, this is a red flag. क्योंकि आप गुलाम हैं एक्चुअली उनके. Yeah. If you cannot be comfortable in your sleeve, आपने क्या दुनिया को रूल करना है या कुछ अचीव करना है कि आप ट्रेंड के पीछे इस हद तक जो है ना चल रहे होते हैं, इस हद तक चल रहे होते हैं. All of us are like that. हम कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते. तो एक डिसेंट लिविंग ज़रूर है, बट और ये हमारे जहनों में बहुत अच्छी तरह हमें पता होता है. तो मैं नहीं कह रहा कि हमें कोई खिलाफ उर्फ चीज़ें करनी है. मैं नहीं कह रहा कि आप सारे कल सुबह जो है ना एक तहबंद पहन के और हाथ में एक डंडा पकड़ के जो है ना जंगल में चले जाएं. है एक कल्चर, एक सकाफ़त होती है हर जगह की, ठीक है. मज़हब भी आपको कुछ तहजीब सिखाता है, बिल्कुल उसमें नहीं. बट ये जो एक प्रॉब्लम है ना कि हम इसेंशली हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ, हम सब खुद सारे के सारे लोग एक्चुअली हम बस एक डायरेक्शन में चल रहे हैं जहाँ हमें फुटबॉल की तरह किक किया जाता है. जो हमें जैसी चीज़ बताता है बस हम वैसे करते हैं. या आप मुझे खुद बताओ, मैं आपको एक थोड़ी सी क्लियर मिसाल देता हूँ. हु डिसाइडेड
कि in the Islamic Republic of Pakistan, right, where 99% of people actually kalma go, forget the religious इख्तिलाफ, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाली बेटियां जो है ना वो स्किन टाइट कपड़े पहनेंगी, रिवीलिंग कपड़े पहनेंगी, क्या होता है वो क्रॉप टॉप्स पहनेंगी, मिडरिफ्स पहनेंगी. ये किसने फैसला किया था? How did this start happening to us? Yeah, walk with me to the university, to any university by the way, and you will wallahi feel it's Europe. Imagine the Prophet ﷺ was to just step into one of our universities. We're so proud of Lums. Imagine if Rasulullah sallallahu alaihi wasallam were to come to Lums. I know that's not happening, but imagine what if he was to see the kids at Lums. I think he would cry like anything. It would break him. And if you think this is not real, yeah, Lums is going to be presented to the Prophet ﷺ on the day of judgment. The kids of Lums, what you do at Lums, at BNU, at UMT, at UCP, whatever university you were at. Why do me and you think कि actually हम acceptability की जंग के बाद ना हमसे कोई पूछेगा नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं करेगा? तो मैं आपको बता दूं तकाजा क्या है. तकाजा ये है, यानी नीड ये है कि जब ये हो रहा है ना, आप इस एक्सेप्टेबिलिटी की स्ट्रीक को तोड़ो. You be bold enough and you stand up and say कि यार we are not taking this nonsense. What does that mean? It does not mean कि if I see a girl wearing half the clothes तो मैं जाके उसको फतवे लगाऊं या कहूँ बाजी आए मैं आपके लिए चादर लाया हूँ, ठीक है, या आए मैं आपको हया मार्च पे लेके जाता हूँ. ये भी एक अलग डिजास्टर है. It means that I am confident enough, ठीक है, in my own sleeve, I can say what is right, what is wrong. I don't have to start being like them. I can be clear about it. And I also have enough compassion कि मैं उनके लिए भी दुआ करूँ. हमारा मसला ये हम तो खुद बिक जाते हैं और रुल जाते हैं. हम तो हलाल और हराम में खर्च करना खत्म कर चुके हैं. So the problem is not theirs, the problem is ours actually. हम इतना पिस चुके हैं और नीचे हो चुके हैं कि हम कुछ कह ही नहीं सकते किसी को. एंड मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, इट इज़ बिकम सो मिजरेबल, जस्ट थिंक अबाउट इट, दैट इस मुल्क में आप किसी को नमाज का नहीं कह सकते. या आप किसी को पूछ नहीं सकते कि यार, नॉट इवन इन अ हेल्दी मैनर, क्या नमाज पढ़ लेते हैं. You cannot. You can say any other thing to him. You can push him on things. Like you can literally drag your friend, okay, let's go for coffee. Let's have food outside. Oh, but you drag your friend, okay, let's pray namaz, you're a bloody extremist. Yeah, you're pushing him. This is between him and God. Between him and God, really, if I was to be harsh, is hellfire. Nothing else. Because the Prophet ﷺ said in a hadith that the one who left one prayer, فَقَدْ كَفَرَ, as if kufar kar diya usne. And Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, wo to actually literally say, he would say कि वो काफिर हो गया. So what is it that we want to take? What is it that we want to take is the question. So my taqaza is to the people that I am speaking to, and my own self as well, that हम अपनी values को सही lay down करें और उस पर एक्सेप्टेबिलिटी फ्रेमवर्क्स बनाएं, उसको सही समझें, उसके बारे में बात करें, क्या उसके बारे में बात करें. एंड यू हैव टू लर्न टू, बाय द वे, टर्न द टेबल्स अराउंड. मुझे याद है एट यानी दिस इज आई थिंक थर्ड ईयर एट लम्स, देयर इज अ प्रोफेसर हु वुड कम फ्रॉम मिनेसोटा. एक सेमेस्टर के लिए वो आए थे, बड़े ज़बरदस्त आदमी थे. ही टॉक, डॉक्टर नादिर बुधवानी वाज हिज नाम फ्रॉम, इफ आई नो. ही टॉट हिज बिजनेस एथिक्स. राइट, सुबह 8 बजे क्लास होती थी, कम ही मैं वैसे गया था उस क्लास में, बट जो गया था तो काफ़ी यानी ज़बरदस्त बातें थी. तो वो हमें एथिकल डिलेमास जो है ना पढ़ा रहे होते थे. तो उसमें यानी वो तो सेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्स था, जैसे होता है, यानी रिलीजन का कोई उसमें अमल दखल नहीं था. बट लाइक आई रिमेंबर 1-2 एग्जाम्पल्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में ये होता है कि अगर आप जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं वेस्ट पे, तो और एक खातून है और उसने हाथ में जो है ना एंगेजमेंट रिंग पहनी हुई है, ठीक है. तो अब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नोशन ये है कि यार इफ़ शी इज़ एंगेज्ड और इफ़ शी इज़ मैरिड तो परहैप्स जो है ना सून शी विल गेट प्रेग्नेंट एंड फिर ये लीव मांगेगी, तो पता नहीं इसकी प्रोडक्टिविटी को क्या होगा, इसको रखना है या नहीं रखना, ये है वो है. तो उसका एक कॉन्टेक्स्ट जो मुझे रहा गया कि उसमें ना वो ये सिखा रहे थे कि when the organizations not hire you because of reasons like these, you have to learn to turn the table
and ask them that, it's not about what we are doing, because हम तो ठीक कर रहे हैं. It's about the fact that we want to see that as a company, do you value humans enough कि आप मुझे मेरी इस चीज़ के बावजूद एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते. Because, to have a child or to get married is part of, essentially human needs. In a similar sense, why am I using this example? When people call you out for your Islamic beliefs, for the fact कि आप काम के दौरान नमाज की ब्रेक मांगते हैं, यूनिवर्सिटी में आप कहते हैं जुमे के दिन क्लास नहीं होनी चाहिए या हमें उस वक्त ब्रेक मिलनी चाहिए, या आप अदरवाइज कहते हो कि यार अगर मुझे एक रिलीजियस फ्रीडम चाहिए अपने लिबास में, मुझे वो मिलना चाहिए, तो rather than anybody dare to mock you, you should be able to say यार तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच किधर है, तुम्हारी टॉलरेंस किधर है, राइट? तुम्हारा लिबरल पैराडाइम किधर गया है? बट मैं और आप ऐसे मुंह छुपाए फिर रहे होते हैं जैसे पता नहीं नाउजुबिल्ला हम कुछ शिरकिया दीन पे हैं और हमसे कोई लोएस्ट ऑफ द लो है ही नहीं. ये तो मुसलमानों की हालत है. तो ऑब्वियसली वो तकवीयत ही पकड़ेंगे ना. वो क्या करेंगे? हम 4 दोस्तों में दीन की बात नहीं कर सकते यार. दिस इज आवर स्टैड रियलिटी. तुम्हें मुझे लग रहा है हम जिहाद करेंगे फ़लस्तीन जाके? जो 4 दोस्तों में इस्लाम, 4 मुसलमान दोस्तों में इस्लाम की बात ना कर सके, वो आपको लगता है जिहाद करना है उसने जाके फ़लस्तीन के लिए और कश्मीर को लिबरेट करवाना है और यूगर के मुसलमानों को बचाना है और उम्मत का लीडर बनना है? नॉट हैपनिंग बॉस. नन ऑफ अस इज देयर एक्चुअली. इट स्टार्ट्स एट अ वेरी स्मॉल लेवल. हम तो अपने ऊपर जिहाद नहीं कर सक रहे कि अपनी 6 फुट के जिस्म पे हमसे शरीयत नाफिज नहीं हो रही. So there is a lot of work that has to be done. And when people, get done with this notion of acceptability, because a lot of people, by the way, mashallah, over here are happy, you're also acceptable, then they move to the next step, which is they want to be popular. And this is ajeeb, like this, and this has actually hit the roof now. Because पुराने ज़माने में ये different तरीके से होता था. But the pursuit of popularity is essentially the fact that you want to be noticed. You want to be noticed, right? Which means what? And the world that we are living in, literally to get noticed, लोग अजीब व गरीब पागलों वाली चीज़ें कर रहे हैं. I think Instagram and क्या है ये आपका TikTok and YouTube is filled with crazy stuff. Like literally crazy stuff. And it just shows you कि इसने किस तरह इंसान को ना enslave कर दिया. एंड हमें वो हम कितना स्टूप होते चले जा रहे हैं, कितना गिरते चले जा रहे हैं. हम दुनिया के सामने कार्टून बने फिर रहे हैं. वो लोग जिनके बारे में कुरान कह रहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा वलक़द कर्रमना बनी आदम. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या क्या नहीं कह रहे हमारे बारे में कुरान में. एंड हम क्या कर रहे हैं? मुंह टेढ़ा करके यूट्यूब पे किसी को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो है ना, वो आपकी थी ना वो एक कार्टून जिसने क्या पता नहीं ये हम हैं और ये पार्टी हो रही है. There was this girl, right, who got really famous साल 1.5-2 साल जब भी पुराने. आई थिंक आधी कौम उस पर ना रश कर रही थी कि काश हम भी जो है ना ये हो जाते. दैट वाज द स्टेटस कि वी विश. नसिया इंस्टीट्यूट भी कोशिश कर रहा था कि हम ये कर लेते. कुल यही फिक्र और गम है ना. कुल यही फिक्र और गम है. Just the idea that I want to have X number of followers, I want people to... What is going to happen to all of that? First thing. और ये मैं आपको बताऊं दौरे हाजिर का particularly जो बच्चे बैठे हुए हैं हमारे, ठीक है, because and I empathize with you kids, those of you who are younger, right? कि हम तो बहुत बूढ़े हो गए हैं वैसे जो है ना, उम्र बताते भी शर्म आ रही होती है. So is the fact that essentially आपको एक बात ये समझनी है कि you have to stop this. You cannot run away from social media. It's a need. किसी के लिए WhatsApp है, किसी के लिए YouTube है, किसी के लिए Instagram भी है, किसी के लिए और भी चीज़ें. But you have to come out of this race that it has. If you don't realize it, it will destroy me and you. It actually will destroy me and you. And it leaves one in a really dark place. Really dark place. I'll tell you one more thing, which is through experience, and I've seen enough kids on university campuses and otherwise as well.
जब आप खुश रहने के लिए, एक्सेप्टेबिलिटी के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए ज़िंदा रहते हैं ना, तो इस ज़िंदगी में आमतौर पे अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं होते। इस ज़िंदगी में एक्चुअली एक चीज़ क्रिएट हो रही होती है, वो आपके अंदर एक फ़िरौन होता है। You become too big in your own eyes. And why don't you see it? Because everybody around you, वो आपको ना दरबारियों की तरह एक मुरीद होते हैं आपके यहाँ बहुत सारे, is saying the things you want to hear. हर कोई आपकी वाह वाह कर रहा है. You know, you were the kid on campus. You were the most social person. Everybody loves you. You have followers, you have friends. आप हर एक को मुंह बंद करवा सकते हो, आप मजाक कर सकते हो, आपके पास अच्छी गाड़ी है, सब कुछ भी है. You are the golden eyed boy. The faculty likes you. आपके दफ्तर में everybody likes you. And I'll tell you what happens. More and wallahi, even if that happens, it's a blessing. If you can realize the lesson. All of a sudden, Allah subhanahu wa ta'ala pulls the plug on you. Literally, all of a sudden, Allah subhanahu wa ta'ala pulls the plug on you. What does that mean? It means कि अल्लाह ताला उस पूरी चीज़ को ना गायब कर देते, ज़ीरो कर देते हैं उसको, दुनिया में आपके सामने कर देते हैं. या यू नो, फ्रॉम हैविंग एवरीथिंग टू द फैक्ट कि यू आर फायर्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. आई हैव सीन पीपल लाइक वाइस प्रेसिडेंट नेक्स्ट टू बी प्रेसिडेंट एंड ऑल ऑफ अ सडन सियासत होती है, फायर हो जाते हैं एंड देन सड़क पे आ जाते हैं. यू नो, द स्टार बॉय ऑन कैंपस मेक्स अ मिस्टेक, थ्रोन आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी. या डूइंग एवरीथिंग वेल एंड अचानक कोई बीमारी आ जाती है, कोई गुनाह खुल जाता है, कुछ चीज़ हो जाती है. इट जस्ट यू नो, बिजनेस डूइंग परफेक्टली फाइन, लाखों कमा रहे हैं, तीसरी फैक्ट्री बनने लगी है, ऑल ऑफ इट कम्स डाउन क्रैशिंग. व्हाई डज इट हैपन इज द क्वेश्चन. Is because you never had Allah subhanahu wa ta'ala in the picture. You never had him in the picture. And that's when people feel they hit rock bottom. They become suicidal. Some of them even do it actually, unfortunately. But who is to blame for all of this is the question. गलती किसकी थी in the first place? अल्लाह सुब्हानहू ताला ये बता चुके हैं मुझे और आपको. याद रखो कि कुरान एक्चुअली, हमारा प्रॉब्लम ये है, हम कुरान को एक मैनुअल ऑफ फिक्स समझते हैं, ठीक है, हलाल हराम की किताब समझते हैं या कोई तजवीज़ ठीक करने की किताब समझते हैं. कुरान हमें हेल्प करने के लिए आया है और ये इतना बड़ा एसेट है ना, क्योंकि अल्लाह आपको बता रहे हैं कि ये हक किताब है, इसमें कोई बात गलत नहीं हो सकती. हाँ, मैं आपको एज ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ वैसे, एक नुस्खा दे दूँ ना कि दवाई लो, तो आप इतने शऊर रखते हो कि मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरी प्रिस्क्रिप्शन गलत हो सकती है. तो हेंस यू कुड टेक अ सेकंड ओपिनियन और यू कुड कम बैक टू मी, वी कुड चेंज मेडिसिन. अंडरस्टैंड द मेडिसिन ऑफ द प्रॉफिट एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैन नॉट बी रॉन्ग. व्हाट ही इज सेइंग कैन नॉट बी रॉन्ग, बट वी आर नॉट विलिंग टू ट्राई इट. तो कोशिश नहीं कर रहे कि हम उस बात को समझने की कोशिश करें कि आप जो मर्जी कर लो, अल्लाह विल पुल द प्लग ऑन यू. एंड मैं तो खैर वैसे भी, यू नो, दोज who are close to us in the sense, you know, there are people who sort of, you know, उनको पता होता है दीन ठीक है, वो आ नहीं रहे होते, तो मैं अक्सर मजाक करता हूँ, बेटे किधर भागोगे, या यू नो व्हाट, डू व्हाटएवर. मैं तो खैर अपनी तबीयत इस मामले में मेरा चिल भी है कि यार गो डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. कितनी याशी करनी है, कितने नशे करने हैं, कितनी जो है ना लज्जतें लेनी है, सब करके आ जाओ मेरी जान. बिकॉज दिस आई नो दैट इट ऑल एंड्स बैडली. Like I have 200% yakin, there's no doubt about it. Unless, you know what, there is absolute istidraj for you, which means कि अल्लाह ताला ने decide कर लिया that you're going to hellfire straight from the दुनिया, मौका भी नहीं मिल रहा, which is a very strange, क्या कहते हैं, hard thing. But I don't think अल्लाह ताला अपने लोगों को हमेशा मौका ज़रूर देते हैं. So आपको इस बात को याद रखना है, इस बात को याद रखना है. और इसके साथ ना दो और चीज़ें हैं जिसके बाद मैं दूसरी साइड पे आता हूँ कि जब लोगों को ये चीज़ें, ये परसूट्स मिलना शुरू हो जाती हैं, फिर वो दो और पार्ट्स करते हैं. एंड दिस हैपेंस व्हेन यू एक्चुअली स्लाइटली ग्रो ओल्डर, राइट. यू स्टार्ट लुकिंग फॉर प्रेस्टीज एंड यू स्टार्ट लुकिंग फॉर मनी. नाउ दिस, बाय द वे, एवरीवन इन दिस रूम एक्चुअली आल्सो वी वांट दैट. अब अच्छा, द चैलेंज हियर इज दिस, बिकॉज प्रेस्टीज का ताल्लुक इज्जत से भी है, राइट. अब इज्जत किस चीज़ से आती है? अभी थोड़ी देर के लिए खुद सोचो. इज़्ज़त इस बात से आती है कि आप कितने प्रेजेंटेबल हैं. मैं आपको बताऊँ ना कि अगर मैं आई डोंट नो मोस्ट ऑफ यू एक्चुअली, ठीक है, सो करते नहीं हैं एक्चुअली, थोड़े वी शुडंट डू इट, ठीक है.
बट आई मीन चलो वी सी अ ब्रदर ओवर हियर, मैं करूँगा नहीं, डोंट वरी, ठीक है. इफ़ आई आस्क हिम, आपका नाम क्या है? Izzat. Oh, mashallah. What a tremendous coincidence. So if I ask brother Izzat over here, right, कि you know आप क्या हाल है आपके, कैसे हैं, he reply back to me politely, and I would do the same, brother. And I ask him, अच्छा आप बताएं अपने बारे में. He will tell me those things about himself जिनमें इनको लगता है कि प्रेस्टीज है. मैं भी यही करूँगा. इस ना you know आप मुझे अपने बारे में बताओ तो मैं कहूँगा यार मैं बताता हूँ कि कल ना मैंने ये गुनाह किया था, ठीक है, और मैं क्लास 5th में फेल हुआ था, और मैंने जो है ना ये इस जॉब से मैं फायर हुआ. आई विल नॉट डू दैट. आई विल टेल हिम ऑल थिंग्स दैट आर अबाउट प्रेस्टीज. दैट्स अ वेरी गुड हिंट फॉर यू टू थिंक कि आप किन किन चीज़ों में प्रेस्टीज सीख करते हो. So, you know, it could begin with the name of your university, the designation that you have. बस नहीं चल रहा, अगर सैलरी अच्छी हो तो वो भी बता दे, ठीक है ना, कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है. सो बहुत सारी चीज़ें, कुछ का बस चले तो शायद अगर उनके पास अच्छी गाड़ी है तो वो ऊपर ले आए नसिया में, ठीक है, कि हम इस वाली गाड़ी पे हैं, या सबको नीचे ले जाएंगे, देख लें पहले फिर हम उतरेंगे, या फिर सोशल मीडिया में कोई फिर रहा होगा कि वो चेक करवा दे. यही हो रहा है ना, इन्हीं चीज़ों पे, ठीक है. या घड़ी और आगे करके पहन लें, ठीक है, शर्ट उल्टी करके पहन लें, ब्रांड नज़र आ जाए. ऑल दिस इज प्रेस्टीज, ऑल दिस इज प्रेस्टीज. इस रेस में पड़ जाओ, ठीक है, इट्स अ नेवर एंडिंग रेस. अब नोबडी इज सेइंग अच्छा नहीं पहनना, अच्छा नहीं रहना, वो नहीं करना. अब चैलेंज भी यही है ना कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ में ना एतदाल मांगी. देखिए अगर किसी के पास अच्छी गाड़ी है तो उस अच्छी गाड़ी में खाली प्रेस्टीज नहीं, उसमें कंफर्ट भी है, और कंफर्ट सीख करने से किसी ने मना नहीं किया. ये चैलेंज आपका है और मेरा है कि हम अपने दिल से असेसमेंट करवाएं कि यार हमारी प्रेस्टीज जो है ना वो कंफर्ट की सतह तक थी, या हमारी प्रेस्टीज ऐसी थी कि मैं अपनी वर्थ डिटरमिन करता हूँ इस गाड़ी से, मैं अपनी वर्थ डिटरमिन करता हूँ इस बात से. वो हमारे साथी माशाल्लाह एक पीछे आए हैं यूके से, ठीक है, तो ऑल ऑफ अ सडन ये बता सकते हैं आपको जी मैं आई एम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड, राइट, ग्लासगो. प्रेस्टीज ही लगे, कहाँ लाहौर का बेचारा शरीफ बच्चा यूके चला गया, बट पासपोर्ट लगाओ तो दुनिया भी जो है ना क्या कहते हैं वीज़ा लगाओ इज्जत देती है. ये सब चीज़ें हैं ना जो हम जिनको मुसलमान के लिए एक्चुअली ये सब चीज़ें कभी भी मानी नहीं रखती थी. मैं आपको एक बस मिसाल दूंगा कभी, और ये बार बार मुझे और आपको सबक दोहराना है अपने आप को कि इन चीज़ों में इज्जत नहीं है. इन चीज़ों क्यों? क्योंकि एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक नाम है अल-मुइज़्ज़ और अल-मुज़िल. अल्लाह ताला बार बार याद करवा रहे हैं कि मेरे बंदे तुझे इज़्ज़त मैं देता हूँ, तुझे ज़िल्लत मैं देता हूँ, तेरा नफ़ा और नुकसान मेरे हाथ में. वो सबब है, देखिए हमें नज़र आ रहा है सबब से होता है, तो बस याद करवाते रहो. जहाँ कोई आपको आपकी गाड़ी की वजह से, ओहदे की वजह से इज़्ज़त दे रहा है, आप उसको उस रियलिटी को डिफाई नहीं कर सकते, बट उस वक्त अपने जहन में या अल्फाज से कह के याद करो कि नहीं इज़्ज़त अल्लाह देने वाला. उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक्त बैतुल मुक़द्दस फ़तह कर रहे हैं, राइट, उस रास्ते में वो जो मशहूर वाक़या मैं उसका खुलासा बताता हूँ, तो यू नो उनके कपड़ों पे अभी भी पैबंद लगे, एंड ही इज़ नियरिंग एज अ फातिह, एंड दे कम एंड से टू हिम दैट अमीरुल मोमिनीन, यू नो we could perhaps you know change some things. एंड एक सवारी पे जा रहे थे तो गुलाम और वो शेयर कर रहे हैं, तो यू नो कि आप कम अज़ कम ऊपर बैठ जाएं कि वो क्या देखेंगे सोचेंगे. एंड उन्होंने क्या फरमाते हैं, खुलासा बताते, ही सेज अ ब्यूटीफुल थिंग, ही सेज कि याद रखो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जो है ना इज़्ज़त किस वजह से दी थी. आई एम सेइंग, आई एम पैराफ्रेजिंग, बिकॉज ऑफ द गिना दैट वी हैड फ्रॉम दीज थिंग्स, कि जो हमारी इंडिपेंडेंस थी ना दुनिया की चीज़ों से, उस वजह से अल्लाह ने हमें वो किया था. एंड तुम चाहते हो कि हम वापस उस दुनिया पे डिपेंडेंसी क्रिएट करना शुरू कर दें, वापस गुलाम बन जाए उस. एंड आज हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम उस पूरी चीज़ के गुलाम बन गए. ये कैसे तब्दील होता है? एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आपके और मेरे तारुफ में दीन आना चाहिए. If you are proud to be a British national, if you are one, if you are proud to be from Harvard or LUMS, if you are proud to be working in Unilever or P&G, if you are proud because you know you come from a Falah political family or Falah this family, right? You should also be proud of the fact that you were amongst the sons of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and you should say that proudly. You know, second wave secularism said, "Do not wear religion on your sleeve." We tell them to shut up. And we say we will wear religion on our sleeve. We will carry it in our hearts, we will wear it in our sleeves, and we will see what you can do about it.
That is how a Muslim should be. And that is how we expect you people to be. I don't expect the poor Maulana, and wallahi I defend him here right now, amongst other problems, a man who earns 8,000 rupees a month, okay, and does not even understand the dynamics of your world. How do you expect him to stand and say that? Yeah. Amongst all things, आज भी आप जाके ना मदरसे के उस्ताद की एवरेज सैलरी देख लें, 8 से 12,000 रुपये वो है. यू एक्सपेक्ट हिम टू लीड. अब वो एक अलग टॉक है कि वो सिस्टमेटिक जुल्म क्यों है, क्यों नहीं. आपको और मुझे खड़ा होना है उलमा के साये के अंदर, उनमें से जो हक लोग हैं उनको सपोर्ट करते हुए उनको भी एम्पावर करना है, सबको साथ लेके चलना है ना. बट यू हैव टू स्टैंड फॉर दिस. यू हैव टू ब्रिंग द रिलीजियस प्रेस्टीज बैक. या यू हैव टू. क्या उस चीज, और वो हर चीज में, फैशन में, राइट, हर चीज, हलाल एंटरटेनमेंट में, हर चीज में हमें उसको रिक्रिएट करके दिखाना. एंड इफ वी अंडरस्टैंड दैट, the next is कि, the last thing that one should live for is money. And I know it is very easy for people who essentially have a decent level of comfortable lifestyle. Because perspective है, एक बंदा कह रहा है मेरे घर पे शाम खाने को वो नहीं है, मुझे नहीं पता मेरा गैस का बिल 2,000 रुपये ज़्यादा आ गया तो मैं कैसे पे करूँगा. तो ऑब्वियसली उसके चैलेंजेस डिफरेंट है, राइट, वर्सेस एक शख्स जो सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुआ है, या अल्लाह ताला ने उसको दूसरों की बनिस्बत ज़्यादा नवाजा है. बट आप ऐसे समझो कि एक ही सफ़ में उस्मान गनी भी खड़े और अली बिन अबी तालिब भी खड़े, एंड इन दोनों की इकोनॉमिक स्टेटस में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है एक्चुअली. आई थिंक nobody gets richer than Uthman anhu, and perhaps not many people would be poorer than Ali radiallahu ta'ala anhu. And yet look at the beauty of the prophetic society, that you take these two names and for us they are at par, or maybe for some Sayyidina Ali is above. That can be argued by people, I don't want to get into that controversy, but just saying कि दोनों की एक अजमत है, एक शान है, क्योंकि they never built society which was on prestige or money or popularity or acceptability or happiness or joy. So the bigger sunnah is to change our mindset, right? Again comes through responsibility. I see some of you are old, right? And that means कि आपके घरों में बच्चे हैं. And कभी अपने आप से पूछें कि how are you raising your kids differently? हम इसमें तो फंसे रहते हैं कि बच्चे को HSN कॉलेज ही भेज दें, ठीक है. HSN वालों की बड़ी शामत आती है मेरे यहाँ, तो आज मैं कुछ ना ही हूँ तो बेहतर है, ठीक है. सो बहरहाल HSN कॉलेज भेज दें, ISL भेज दें, या स्किल भेज दें, या किसी और इस्लामिक स्कूल डाल दें, या पता नहीं नसीहा वाले कब स्कूल खोलेंगे. जब आप पैसे देंगे हम खोल लेंगे. इसका सिंपल जवाब ये है, ठीक है. नसीहा बेचारा ऑलरेडी कर्ज़ों में डूब रहा है, ठीक है, वरना तो हम सब कुछ खोल चुके होते, राइट. एनीवेज, सो इस सवाल से ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपने बच्चे को बनाना क्या चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को देखना किधर चाहता हूँ. एंड फिर बहुत लोगों को इसका जवाब भी नहीं पता. जिनको लगता है उनको पता है, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली वो क्या एक बात रहे, वो कर बिल्कुल डिफरेंट रहे. तो क्या मतलब है, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ. अगर आप रोज़ मुझे आके कह रहे हो कि यार मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा नेक हो, दीन का काम करे, अच्छा इंसान बने, सब कुछ करे, एंड घर का एटमॉस्फेयर ये है कि वो बच्चा दुनिया में एक एग्ज़ाम में बुरा रिजल्ट लाता है, फेल हो जाता है, कुछ भी करता है, तो एक सीरियस मीटिंग होती है, डांट पड़ती है, ट्यूटर हायर किया जाता है, सब कुछ होता है जो होना भी चाहिए अगर आप मुझसे पूछें. इसी की बनस्बत वो बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ फजर मिस करता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी छोटा है, कल पढ़ लेगा, ठीक है. क्या आधा पाकिस्तान मुझे बता रहा होता है कि व्हाट, हमें अपने बच्चे के लिए अच्छा कारी नहीं मिल रहा. उसका असल जवाब पता है कि आप ढूंढना ही नहीं चाहते, आप बकवास कर रहे हैं. यू आर अ लायर एक्चुअली. बिकॉज आप वो लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स ढूंढ कर उनको इंग्लैंड और अमेरिका भेज देते हैं. आप कर्जे लेके उनको पता नहीं यूरोप पढ़ाने भेज देते हैं. एंड आप मुझे कह रहे हैं कि आपको अच्छा कारी नहीं मिल रहा. आप चाहते ही नहीं हैं कि आपका बच्चा अच्छा, आप चाहते ही हैं कि वो किसी तरह को 1,500-2 हज़ार रुपये में आके ना वो आपका ज़हनी चेक बॉक्स क्लियर कर दे. इसलिए नहीं मिल रहा अच्छा कारी. सॉरी फॉर द
harsh language, but that's third state. तो कभी नहीं मिलेगा, 10 साल ढूंढते रहो नहीं मिलेगा, मैं भी बता रहा हूँ. कारी कम है, ये एक अलग इशू है. But yeah, so this is one part of it. The other of it, because we have 15-20 minutes left, is the fact that you could give all of this up. And remember, we started about responsibility, right? You could take responsibility and first understand that हमारे दीन में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हदीस जिब्राइल में कहा जाता है एहसान. ये उर्दू वाला एहसान नहीं है, बट उससे भी मुशाबिहत है कि नबी अलैहिस्सलाम के पास जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, एक हदीस में, मशहूर हदीस है, और उन्होंने पूछा कि अखबरनी अनिल एहसान, या अनिल एहसान, कि एहसान क्या चीज़ है. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ऐसी इबादत करना कि जैसे कि तुम अल्लाह को देख सकते हो. फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यरा, कि अगर तुम अल्लाह को नहीं देख सकते तो कम अज़ कम ऐसे कि जैसे कि अल्लाह तुम्हें देख रहे हैं. अब इसके बहुत सारे मानी हैं, बट इसका एक आसान नोशन ये है कि हर चीज़ को बेहतरीन अंदाज से करना. एहसान ये है to do everything in the best possible manner, right? And that's a pursuit as well. And unfortunately, the religious people in this country, people like me and you, who are supposedly religious, right, trying to be religious, it is ajeeb that when we do our dunya, we are trying for ihsan, and when we do the deen, we only settle with the farz and wajib part of Islam. There is no excellence in our deen. It can start from the basic ibadat. हमारे दिन में 5 नमाजों में से एक में भी एहसान की कोशिश ही नहीं होती. And एहसान is, there is no rocket science to एहसान. मैं अपनी बात करता हूँ आपसे, right? And I don't say it proudly. It's a reminder for every one of us, right? एहसान in namaz is very simple. इंतज़ार लिस्सला, मस्जिद, तकबीर उला, सारी तमाम चीज़ें हैं, right? सुनन का वो करना, अज़कार करना, सब चीज़ें. And months go by, we don't have that. We don't have ihsan in muamalat. We don't have ihsan in zikr. We don't have ihsan in anything actually. But आप उसी शख्स को actually 6 महीने बाद मिले, he is progressing in दुनिया. बिजनेस में सेल्स इधर थी, इधर हो गई हैं. पहले असिस्टेंट मैनेजर था, अब मैनेजर हो गया. पहले मैनेजर था, अब डायरेक्टर के लिए प्रमोशन गई हुई. And the happiness that his heart feels. पहले नॉर्मल वीज़ा था, अब गोल्डन वीज़ा लग गया दुबई में. Do you imagine? गोल्डन वीज़ा इन दुबई. सीधा जन्नत में जाते हैं गोल्डन वीज़ा वाले. आपको पता है, सीधा, बगैर हिसाब किताब के. तिरमिज़ी में या बुखारी में को बता सकता है अगर मुझे, क्या? बिकॉज इस वक्त नेशनल ट्रेजिडी ये है कि पाकिस्तानियों का दुबई का वीज़ा नहीं लग रहा. मैं तो ट्रैवल एजेंट हूँ, ठीक है, तो मुझसे पूछ लें. हाँ, दिस इज़ लाइक ए नेशनल ट्रेजिडी at this point in time. I do understand there is a genuine need for people who have to go, but this is the total figure that we have. So live for ihsan. Now the very easy way of doing this is कि जितना दीन कर रहे हो ना, before you start thinking about improving it, बस उसी को अच्छा करना शुरू कर दो. उसको increasing it. एक चीज़ है कि यार मैं नमाजें तो ऐसे 5 ही हैं, बट चलो मैंने इनको भी बेहतर करना है, जो भी और भी करना है. जो कर रहे हो ना, उसके बारे में सोचो, उसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ. छोटे छोटे गोल्स हैं. आई जस्ट हैव टू इम्प्रूव दिस इन वन सेंस और द अदर. वर्क विद वन. आई टेल यू व्हाई इज दिस ब्यूटीफुल. एनीथिंग यू डू विद एहसान गाइस, you start loving it. If you start loving it, then you protect it. Yeah, then you protect it. So, give you a very simple example. अगर ये मेरे कपड़े नए हैं ना, या मेरे लिए कीमती हैं, तो मैं इसको पहनूंगा एक सर्टेन तरीके से, चलते हुए भी इसका ख्याल करूँगा, राइट. उतारूंगा भी तमीज़ से, फोल्ड करके रखूँगा, शायद हैंड वॉश करवाऊँ, राइट. इस पर कोई दाग लग जाए तो घर पे क्राइसिस आ जाएगा, मारूंगा नहीं किसी को, ठीक है, बट ठीक है. क्यों? क्योंकि इस लिबास के साथ एक एहसान जुड़ गया. और अगर ये वो रन डाउन हालत में अब आ गया है या मुझे पसंद ही नहीं है, तो फ्रैंकली शायद ये मेरे वार्डरोब से कोई जला भी दे वर्कर, या कुछ भी हो जाए, या कोई लेके जाए वापस से करे, मुझे परवाह नहीं होगी. बट भाई मैंने आपको सादा सी मिसाल दी. अनफॉर्चुनेटली मेरा और आपका इस्लाम जो है ना, उस रन डाउन किस्म के लिबास की तरह है, जिसको कोई एक तरफ से जलाता है, कोई उठा के फेंक देता है,
वो गंदा पड़ा हुआ है, किसी को परवाह नहीं है, ठीक है। वो कई कई हफ्ते बुझा पड़ा हुआ है, कोई नमाज नहीं पढ़ी, जुमा नहीं पढ़ा, किसी को परवाह नहीं है, कोई हया नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कुरान खोले महीनों हो गए हैं, ठीक है, अल्लाह से बात नहीं की, दुआ नहीं मांगी, ठीक है, चल रही है ज़िंदगी। चल क्यों रही है? ये मेरे रब का फजल है, वो हमें रोज़ खाने को देते हैं, वो हमारी हर नेमत को पूरा करते हैं, या हर चीज़ को जो है ना अल्लाह ताला अदा करते हैं, तो हमें एहसास ही नहीं है। तो छोटा सा नोशन है एहसान। एंड दूसरा ये प्रॉब्लम हुआ कि एहसान क्यों गायब हुआ, एक्सीलेंस क्यों गायब हुई। उन्होंने दीन को एक्चुअली आपके मेरे लिए बना ही ऐसे दिया है कि हम उससे डिटैच हो जाए। उसको पढ़ाया भी ऐसे ही जाता है, हमारे घरों में ऐसे ही पढ़ाया जाता है, या हमारी पूरी परसेप्शन में ऐसा हुआ है ताकि बच्चे, हम लोग बड़े भी अपने इस्लाम से अटैच ना हो सकें। तो वो अटैचमेंट डेवलप करनी है, अगर आपने वो ताल्लुक़ जोड़ना है ना, वो अटैचमेंट डेवलप करनी है, या the younger people, you know, you're up for streaks, you like doing streaks, right? There's something called streaks. किस पे होता है ये? Snapchat, right? अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम करे और आपके गुनाहों को माफ़ करे, ठीक है। मुझे तो अभी समझ ही नहीं आई। Build a streak for beyonds, yeah, build a streak for beyonds. Come back a year later and say that for 365 days every week I went to a beyond. I went to Nasiha, I went to the masjid, I went to youth club, I went to Dr. Israr's academy, I went there, or you went to one institute even. But every week I gave myself a dose for Allah subhanahu wa ta'ala. Build a streak for a year, and that's something to be proud of, rather than the fact कि अपने पागल दोस्त को मैं रोज जो है ना पोक कर देता था। हमारे नबी की हदीस थी, अहब्बुल अमाली इंदल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला, the most beloved actions are little but done with istiqamah. You think that was for Snapchat? So ये पहली चीज़ है कि अपने किसी एक दीन के अमल को लो। I remember Lams one of Sheikh Kamal actually told us this, कि pick one neki that you are doing, one sunnah that you are doing, one ayat of the Quran, and fall in love with it. You know, if I was to ask you, what is your favorite ayat of the Quran? Half the people would not have an answer to it. What is your favorite hadith of the Prophet? Like genuine favorite. You won't know. Versus what is your favorite car? Tak BYD. And bike खरीदने के पैसे नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ BYD favorite car है. What is your favorite brand? Apple. What is your favorite vacation? Turkey, God knows what. You don't know what is your favorite car, what is your favorite ayat of the Quran, because you don't have any ताल्लुक with the Quran. Let know सारे कुरान की तफसीर पढ़ेंगे, वो एक पढ़ लो, एक आयत से मोहब्बत कर लो, that was enough to get you started. One hadith of the Prophet. Who is your favorite companion? Like favorite, you know everything about him. Who is your favorite football player? हाँ जी, who is your favorite football player? रोनाल्डो, हाँ, माशाल्लाह, ठीक है, मेरे घर भी बैठा हुआ है, ठीक है, मेरे घर भी बैठा हुआ है. So क्यों हो रहा है ये? How is it possible? Ronaldo doesn't care about him. Wallahi, Ronaldo doesn't care about him. But you know what? The Prophet cared about him. The Prophet wept for him. He wept for me and you. He gave up things for you. You know, when Fatima goes to the Prophet, Allah के नबी का जिस्म ना जख्मी हुआ है because वो उजड़ी फेंकी थी, and she is crying, and you know वो हंगामा कर रही है, और अल्लाह के नबी रुक जाते, कहते कि नहीं फातिमा, तुम्हें मैं बताऊं कि मुझे मेरे रब ने बताया कि एक वक्त आएगा कि हर कच्चे पक्के मकान में ना ये दीन गालिब आएगा. That's the vision of the Prophet. He's talking about me and you, and we don't care about it. So कितने बेवफा हो सकते हैं यार, कितनी बेवफाई कर सकते हैं अल्लाह के नबी से. How are we going to face him on the day of judgment? What are we going to say to him? Is a question that we have to think about. And once you start with ihsan in one thing, मैं आपको बहुत आसान करके बता रहा हूँ, you move to the next one, which is the pursuit of impact. And yes, let me be clear, you know, कुछ चीज़ों में आजिज़ी होनी चाहिए और कुछ चीज़ों में कोई आजिज़ी नहीं है. We are a nation, we are a people, we are an ummah which wants to leave behind a legacy. इसमें कोई आजिज़ी नहीं. We want to stand tall as the leaders of this ummah.
of the nations that we're in, right? Of humanity. Not for the sake of power. We're not America कि हमने जो है ना oil और land deserts को पकड़ना है. We do it because we want people to be guided, we want justice to come down on earth, and we want essentially कि लोग अल्लाह से राज़ी हो सकें. And in doing so, we'll do whatever has to be done. That has to be the eventual goal. So, just think about this from this perspective. And ये बहुत simple और आसान है. Whatever your age is right now, again, because छोटे बड़े सब हैं, unless you're not baligh, so that's a different issue. But if you've hit puberty and you're in the process, so post your puberty, जो आपके साल गुजरे, in all of those years, तो किसी को बालिग हुए 15 रख लो रेफरेंस, ठीक है, अगर 2 साल हुए, किसी को 10 हुए, किसी को 15 हुए, 20 हुए, जितने भी हुए, आप सिर्फ ये पूछ लें अपने आप से कि पिछले 10 सालों में या 15 सालों में या 5 सालों में या 30 सालों में आपके होने की वजह से ये दुनिया एक बेहतर जगह थी, ये दुनिया फारिग जगह था. Think about your life and think about the fact. And literally you can break it down. In your friends, are you the person जिसकी वजह से लोगों को उम्मीद मिलती है, लोग अल्लाह से जुड़ते हैं, अच्छी बात होती है? Are you the person, maybe you're apathetic, you don't care. In your family, are you the son जिसको बाप देख के कहता है मेरी आंखों की ठंडक? Are you the daughter who's like that? Are you the husband? Are you the wife? For Pakistan, are you the person? For your university, for your organization, right? Break it down and you'll find the answer. Because the Prophet ﷺ came to this world, right, empty-handed. In a manner, that's the unique halat to him. And then he achieved everything. And at 40, Allah took all of it away. Allah subhanahu wa ta'ala took all of it away. That was the test. And 13 saal, he was tortured and bruised and essentially, you do all of this to a man. मुझे तो समझ ही नहीं आती, how does he survive? But the Prophet stood tall with his resilience because he had Allah subhanahu wa ta'ala. And look at what he achieved. But मैं आपको बताता हूँ ये क्यों नहीं होता. And ये वर्ड से सुनिएगा. एक प्रॉब्लम पता है क्या है? I don't know how to phrase this. Most of us, and मैं भी ये करता रहा हूँ until I had to be on this side to understand. You look at people on this side, right? And I'll also let me also address an elephant in the room. When you're sitting on this side and ये बयान कर रहे होते हैं ना, अगर बयान सही हो रहा हो, ठीक है, मुझे पता सही हो रहा है, you think यार ये फिट बंदा है, ये फिट चीज़ है, कोई फिट नहीं है, याद रखें. Everybody is unfit. मैं आपको एक बड़ी सीरियस है. I don't care इधर कौन बैठा है. इधर मौलाना तारिक जमील बैठे हैं, इधर मुफ्ती तकी उस्मानी बैठे हैं, पाकिस्तान आलम इस्लाम के सबसे बड़े, वो फिट नहीं है. वो फिट नहीं है कि क्या मतलब है? उनके भी घर में प्रॉब्लम्स हैं, उनके भी लाइफ में चैलेंजेस हैं. हमारा अकीदा है कि वो मासूम अनिल ख़ता नहीं. हमसे नेक है ज़रूर, हमारा हुस्न ज़न हर एक के बारे में है. हमसे बेहतर हैं बहुत चीज़ों में, आप मुझसे बेहतर हैं 10 चीज़ों में, मैं आपसे शायद 2 चीज़ों में बेहतर हूँ, बट उनके भी प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को लेके इतना मैग्नीफाई कर देंगे ना, और अगर प्रॉब्लम्स ढूंढते रहेंगे और एक्सक्यूज़ेस ढूंढते रहेंगे कि इस वजह से मैं ये सब कुछ नहीं कर सका, तो आप ज़िंदगी भर यही करते रहेंगे, कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे. क्या इसी मुल्क में छोटी छोटी मिसालें देता हूँ जहाँ करप्शन है, सब कुछ है, जिनको पता है या नहीं पता. यू हैव समबडी बाय द नेम ऑफ डॉक्टर अब्दुल बारी खान, इंडस हॉस्पिटल. अगर आपको नहीं पता, उनकी स्टोरी सुने. आई थिंक कई पॉडकास्ट हमने भी ये की थी उनके साथ. जस्ट लिसन टू हिज स्टोरी कि कराची के सिविल अस्पताल में एक डॉक्टर, एक नॉर्मल डॉक्टर, एवरेज प्रैक्टिसिंग बंदा, एक ख्वाब देखता है कि यार मैंने एक चीज़ क्रिएट करनी है. एंड लोग उसको कहते हैं कि पागल होगी, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें को मंथली इतने को लाख रुपए दे देगा फ्री हॉस्पिटल के लिए. एंड देन रीड द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडस. अखुवत के बारे में पढ़ो, ठीक है. सो उन लोगों ने ना एक्सक्यूजेस तलाश नहीं की, उन लोगों ने प्रॉब्लम्स तलाश नहीं की. प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और इनफैक्ट वक्त के साथ बढ़ेंगी. वन, बिकॉज वी आर लिविंग इन द टाइम ऑफ फितना, और ऑल्सो एज का भी डिफरेंस है. आज मेरे घर में रिलेटिवली शायद कम प्रॉब्लम है बिकॉज मेरे बच्चे छोटे हैं. जब वो जवान होंगे, बालिग होंगे, आई डोंट नो क्या करेंगे, रुक नहीं सकते हम. उसकी बेहतरीन मिसाल पता है क्या है, जो मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम हज़रत रुकैया को बदर की जंग से पहले इंतहाई बीमार छोड़ कर जाते हैं. सीरत पे नहीं आता इसका इतना जिक्र, प्रोमिनेंस के साथ नहीं आता.
बदर की जंग में फतह होती है, वापस आते हैं तो पता चलता है कि बेटी जो है ना वो दुनिया से जा चुकी है। रुकैया passed away पीछे से। When she passed away, her father and the Prophet was not there to recite janaza, to give her kafan, to make dua. And you know what? Life does not stop for the Prophet. Do you find anywhere कि बस उसके बाद ना बिकॉज द प्रॉफिट लॉस्ट हिज डॉटर, तो वो 1 साल अल्लाह के नबी ने कहा मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मी एंड यू, मियाँ बीवी में 10 मिनट लड़ाई हो जाए, 6 दिन की लीव दुनिया में अप्लाई हो जाती है, ठीक है। जो इल्म का कोर्स करना शुरू किया था वो छोड़ देते हैं, ज़िंदगी का दिल लगना बंद हो जाता है, पता नहीं क्या मसला हो जाता है, अम्मा अब्बा को सख्त बात करते हैं, नौजवान बच्चे बड़े डिप्रेस हो गए, कोई सोच रहा है मैं चर्च कर लेता हूँ उससे ठीक हो जाऊँगा, कोई कुछ और सोच रहा है। ये करते रहो, ये कभी बाहर नहीं निकल सकोगे। वर्सेस द फैक्ट कि हाँ यू कैन नॉट फिनिश दिस नॉइज। ये नॉइज होता रहेगा। ये नॉइज एक्चुअली पता है क्यों होता है? ये आपको स्ट्रेंथन करने के लिए, इफ यू कैन लर्न टू सर्वाइव विद इट। या एंड द बेस्ट आयत टू अंडरस्टैंड दिस फॉर मी इज ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आयत इन द कुरान पीपल डोंट अंडरस्टैंड, because in this ayat Allah is promising you la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Read it differently, that Allah is saying mere bande, before I test you I empower you, before I test you I equip you, before I test you I put my faith and belief in you that you'll be able to do it. So don't you worry. And wallahi he does it. That's why you're all here. That's why you survived through the hardest times of your life and you think it would not happen. Financially, emotionally, spiritually, whatever. Because he kept giving it to you. So we should not be afraid of halat. We can't be afraid of halat. We have nothing to fear actually other than Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing to fear. Yeah. Because अगर आप डरना शुरू कर देंगे, I'll just wrap up in 5 minutes. Let me tell you, there are 100,000 things to be scared of. ये thought process है। लोगों को एंग्जाइटी होती है बाय द वे बहुत सारी चीज़ों से, मुझे भी होती है कुछ चीज़ों के बारे में सोच के, बताऊंगा नहीं आपको, डोंट वरी, ठीक है। बट यार 100,000 थिंग्स, ठीक है। या आई गिव यू एग्जांपल, यू नो यू आर न्यूली मैरिड एंड यू वांट टू हैव चिल्ड्रन, अल्हम्दुलिल्लाह योर वाइफ स्टार्ट्स टू एक्सपेक्ट, व्हाट आर द चांसेस कि मे बी योर चाइल्ड इज बोर्न ब्लाइंड, मे बी ही इज बोर्न विद सम डिफेक्ट, एंड गेस व्हाट, देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट. No matter who you are, how rich you are, there's nothing you can do about it. Because what is in a mother's womb, nobody knows. No doctor can predict with any level of accuracy. And that's when you realize Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. इतनी सी चीज़ ना आपका पर्सपेक्टिव. मेरा कल नी का MRI था, बताने का मगर मर नहीं रहा, डोंट वरी, ठीक है, नी से तो वैसे भी नहीं, ठीक है. एंड वो था भी, वो एक MRI मशीन होती है जो कबर वाली होती है, वो शुक्र है कबर वाली नहीं थी, वो दूसरी ओपन थी, ठीक है. मैं तो गया था कबर की तैयारी के थे. उस नॉन कबर वाली मशीन पे नी का MRI, ठीक है, जो एक दर्द हो रही थी तो उसको बस सर्टन करना था, ठीक है, कि वो 20-25 मिनट में ना इतना कुछ मैंने सोचा जो शायद मैं काफ़ी अरसे से नहीं सोच रहा था. एंड मैं सोच रहा था यार कि वो लोग जो कैंसर के साथ डिटेक्ट कर दिए जाते हैं, उनके रिपीट टेस्ट हो रहे होते हैं, बायोप्सीज चल रही होती हैं, कीमोज चल रही होती हैं, कितनी ज़िंदगी में अनसर्टेनिटी है. जिनके छोटे छोटे बच्चे घर हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट वसाइल नहीं है उनके पास, पता ही नहीं है कि क्या है. डॉक्टर कह चुका है कि यार पता नहीं किसी वक्त डेथ होती है. क्या रियलिटी है? हम सब इधर बैठे, भाई बहन नीचे बैठे, पता नहीं हमारी बॉडी में शायद एक लंप ऑलरेडी डेवलप हो गया जो कैंसरस है, आपको नहीं पता. एंड इस खौफ से सवाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुछ लिबरेट नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं. आप अल्लाह के कॉन्सेप्ट को हम हल्का समझते हैं कि शायद ये वो मुसलमान थे, दाढ़ियाँ रख के नमाजें पढ़ने के लिए आए थे. यू नो, बिलीफ इन वन गॉड वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू यू. It was the best thing, it was the best gift that anybody could give to you. To have the Prophet ﷺ guide you in everything was the best gift that anybody could have given to you. And you never even realized that. Right? You never even realized that. And that's what I want to come to the end with. Okay, hence we realize that our life is about standing with the truth and pursuing the truth. कि हम हक और सच के साथ अपनी निस्बत जोड़ते हैं. एंड हक और सच एक्चुअली कुरान और हमारे नबी हैं, right? कि
इसेंशियली जो है ना हम वी सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड कि हम उस सतह का एहसान क्रिएट करते हैं उस चीज़ पे। एंड ये जो प्रोसेस है ना इस तक पहुंचने का, ये प्रोसेस फेलियर्स की जर्नी है, ये बार बार गिरने के साथ आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अपजुआत होंगी, दीन भी ऐसे पढ़ाया जाता है कभी कभी, या इवन सीरत ऐसे पढ़ाई जाती है कि उसको ना एक अदब की वजह से, वो तो बात मुझे समझ भी आती है, बट एक इतना गुलू होता है कि जहाँ ना लोग सहाबा को भी ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि वो कोई सुपर ह्यूमन फोर्स थे। बट याद रखें सहाबा कराम जैसा कोई नहीं है, बट यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम द फेलियर्स ऑफ द सहाबा। या you can learn a lot from the failures of the Sahaba in so many senses. And if they were failing at one level or the other, kabhi collectively, kabhi individually, there are enough stories to talk about that. Uhud is a story to talk about that, right? Why do me and you think we will not fail? So fail karna is not the problem. There is nothing you can do which can avoid that failure. The problem is, and I will end with this, taking responsibility and believing on the fact कि मैं एक रास्ते पे चल पड़ा, या बिलीविंग इन द फैक्ट कि मैं एक रास्ते पे चल पड़ा, एंड अब मुझे इस रास्ते से हटना नहीं, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि इसी रास्ते में कामयाबी और किसी रास्ते में कामयाबी नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। बाय द वे ये आपका मेरा बिलीफ है, ये कोई और नहीं है। नहीं, दिस इज़ नॉट द शाफी और द मालिकी फिक कि ये भी कर लो या ऐसे भी नमाज पढ़ लो तो ठीक है। In terms of worldview, in terms of maqsad, in terms of purpose, there is only one path to go about it. And if you are not on that path, ask yourself what path you're on. Yeah, ask yourself what path you're on. Me and you have to be on that path. Right? Me and you have to be on that path. And उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं वअन्न सअयहु सौफ युरा, that तुम्हारी जो एफर्ट है ना, it will soon be seen. कि बस मेरे बंदे अनकरीब जो है ना तुम्हें उसकी जगह मिलेगी। Right? It could mean the दुनिया, it could obviously it means the आखिर as well. And ये टास्क है हमारे सामने, ये चीज़ है हमारे सामने। तो हमारा काम आपको जो है ना बात पहुंचाना है, याद दहानी करवाना है, कोशिश करना है। Because a beautiful story, I will end with this, saying that there was a sheikh who sort of met a man, पुराने वक्तों की स्टोरी है, who used to drink and fornicate. Right? So the sheikh asked him कि तुम नमाज पढ़ो, उनको तरगीब दी। तो he said कि मैं कैसे नमाज पढ़ सकता हूँ, because I can't even make wuzu, because आपको तो मेरे गुनाहों के बारे में पता है। And this is a very normal state. अभी भी you find people who अपने गुनाहों को एक्सक्यूज बनाते हैं, उनके अपने को फतवे होते हैं, इसको हम compassion blocking भी कहते हैं in one sense. So the sheikh assured him that brother you can pray without wuzu, right? And अगर तुमसे शराब नहीं छोड़ी जा रही ना, ठीक है, so नशे की हालत में पढ़ लो नमाज। Now why he said that? Because he was not being ficky, जायज़ नहीं करे थे, he said बस तुम पढ़ लो, ठीक है। And the man was able to, उनके बात में तासीर थी, वो शख्स नमाज के लिए खड़ा हो गया, राइट। तो वो जो बुजुर्ग थे, वो शेख थे, ही मेड दुआ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि या अल्लाह, ठीक है, मेरा काम इस बंदे को तेरे तक पहुंचाना था, राइट, सो आई हैव डन माय पार्ट, अब इसके दिल को कैसे बदलना है वो तेरा काम है। एंड रियली दैट्स आवर जॉब इन दिस वर्ल्ड। व्हेन यू गो आउट देयर टू हेल्प पीपल, वन याद रखें, इन द प्रोसेस यू विल बी हेल्प्ड, बट योर जॉब इज़ नॉट टू लुक एट द बैड थिंग्स दैट पीपल इन सोसाइटी आर डूइंग। ये जो मैंने आपको सख्त बातें भी की ना, ये इन कॉन्टेक्स्ट थी, ठीक है। ऑल ऑफ यू आर ट्रेमेंडसली ब्लेस्ड पीपल, यू आर नाइस पीपल, राइट, इन फैक्ट in so many senses better than me, but your job is to give that hope to people, and you leave the rest to Allah subhanahu wa ta'ala, and you have husn zan, and you be positive about it, right, you be positive about it। और आप देखिए अल्लाह ताला का एक अपना निज़ाम है, क्योंकि मुसलमान के लिए इवेंचुअली फ़तह है, इवेंचुअली कामयाबी है, इसका वादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर चुके हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मुझे इस मकसद को, इस ज़िम्मेदारी को कबूल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, हमें जो है नेक बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
आखिर में थोड़ी सी दुआ कर लेते हैं इज्तिमाई तौर पे, दुआ फरमा लीजिए। सुब्हान रब्बियल वहाब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन, अल्लाह हमारे तमाम गलतियों को, गुनाहों को, अल्लाह हमारी गफ़लतों को माफ़ फरमा दीजिए। मेरे मालिक, हमने जितनी गलतियाँ की, जो बार बार की, अल्लाह जो भूल कर की, जो कभी कभी की, अल्लाह जो ऐसे हैं जिनको जो गुनाह हम भूल भी गए, अल्लाह तो हर गुनाह को जानता है, अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। मेरे अल्लाह, हमने अपने नबी से सुना है अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, कि तौबा करने वाला शख्स ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। मेरे रब, आप गवाह रहिए, हम सब आपके यहाँ अल्लाह आपसे तौबा करते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। ए अल्लाह, आप हमारी तौबा को कबूल भी कीजिए और हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, उनको गायब कर दीजिए। बल्कि आपने कुरान की एक आयत में बताया कि आप अपने मकबूल बंदे के गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देते हैं। अल्लाह, हमारी सय्यात को हसनात में तब्दील फरमा लीजिए ए अल्लाह। और फिर हम आगे दुआ करते हैं कि हमें आने वाली ज़िंदगी में आफ़ियत के साथ, नेकी इत्तिबा के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। ए अल्लाह, हमें अच्छा बना दीजिए, हमें नेक बना दीजिए। ए अल्लाह, हमें दीन को जो है समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए, दीन की ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। ए अल्लाह, ये कबूलियत का मामला है, काबिलियत पे नहीं है। अल्लाह, हम सब को दीन के लिए कबूल कर लीजिए। ए अल्लाह, मंज़िल, रास्ता सब आपको पता है मेरे मौला, हमें कुछ नहीं पता। ए अल्लाह, हमारा इल्म कम है, अल्लाह हमारी समझ कम है। ए अल्लाह, हमारी वसअत भी नहीं है। ए अल्लाह, हम इस दुनिया में तेरी मर्ज़ी से आए हैं, हम जाएंगे तेरी मर्ज़ी से। अल्लाह, ये दरमियान का जो सफ़र है मेरे मौला, हम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारना चाहते हैं। ए अल्लाह, आप हमें शैतान के रास्ते से हटा दीजिए, हमें अपनी नफ्स के आगे झुकने से बचा लीजिए। ए अल्लाह, हमारे हाल पे रहम कर लीजिए। अल्लाह, हमारे हाल पे रहम कर लीजिए। अल्लाह, जब हम गुनाह कर रहे होते हैं, हम मखलूक से छुप जाते हैं, पर मेरे मौला आप तो देख रहे होते हैं। ए अल्लाह, हम आपसे कहते हैं, ए अल्लाह, तू हमें पकड़ लिया कर। अल्लाह, तू हमें पकड़ के हटा दिया कर, तू उन असबाब को हमसे दूर कर दिया कर। ए अल्लाह, फिर तू अपनी रहमत से हमें माफ़ भी कर दिया कर। ए अल्लाह, तू हमें इतना अच्छा बना दे कि हम गुनाहों की तरफ जाएं ही ना। ए अल्लाह, तूने खुद बताया खुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा। अल्लाह, हम तेरे कमज़ोर बंदे हैं, मेरे मौला हमारे हाल पे रहम कर दीजिए। ए अल्लाह, आपने पिछली कौमों को अंबिया दिए, ए अल्लाह, आपने सहाबा को हमारे नबी की सोहबत दी। ए मेरे मालिक, हम अपने नबी के ज़माने से बहुत दूर पैदा हुए हैं। ए अल्लाह, हम फितने के दौर में पैदा हुए हैं। इतनी फ़िरका वारियत है, नफ़रत है, दुनिया है, फहाशी है और यानी है। मेरे रब, हम जाएं तो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? अल्लाह, हमारे पास कोई नहीं है। अल्लाह, हम अपनी ज़िंदगी का एक दिन आपके आगे पेश नहीं कर सकते। अल्लाह, हम आपको एक नमाज पेश नहीं कर सकते। ए अल्लाह, पर हम नाउमीद नहीं हुए, हम फिर आपके पास आ गए हैं, आपसे मांग रहे हैं। ए अल्लाह, ये सब लोग आपको राज़ी करने आए हैं, किसी इदारे के लिए नहीं आए, किसी शख्स के लिए नहीं आए। अल्लाह, ये तेरे नेक बंदे बंदियाँ हैं। ए अल्लाह, तू माफ़ कर दे। ए अल्लाह, तू अपने नेक बंदों में बना दे। ए अल्लाह, ए अल्लाह, दुनिया के तमाम मसाइल को हल फरमा दीजिए, पर अल्लाह, हमें दीन को दुनिया पे मुक़द्दम रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जिसने दुआ के लिए कहा, तमाम की दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, अल्लाह, उनकी ईमान की हिफाजत फरमाइए, उनके ईमान की हिफाजत फरमाइए। जो शख्स जिस गुनाह में पड़ा है उससे छोड़ा नहीं जा रहा, ए अल्लाह, आप उस छोड़ने को आसान कर दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।